अभिषेक सर है, इन्होंने अपना पीजी अपना IIM से करा, अभिषेक सर है। और ये आदित्य सर है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन IIT कंप्यूटर साइंस में। अभी ये दोनों पर्स हैं हमारे सिग्मा क्लासेस के डायरेक्टर भी बोल सकते हैं और मैनेजमेंट टीम भी बोल सकते हैं। जितने भी आप लोग जैसे स्टडी मटेरियल को आप लोग सॉल्व करते हैं, जैसे अभी केमिस्ट्री का दिया गया आप लोग का, जितने भी उसमें करेक्शन होती है मतलब सब वो पहले ये पूरा फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद आप लोगों को वो DPP दिया जाता है। जैसे टेस्ट सीरीज हो गया या कोई भी टीचर की जो रिक्वायरमेंट होती है तो उनका इंटरव्यू लेना, ये बहुत सारा काम होता है जो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। और अब आपको बताया भी गया था कि हम लोग यहाँ पे और फिजिक्स के फैकल्टी आने वाले हैं, उनका सब इंटरव्यू लेके सब कुछ हो गया है फाइनल, उनका टिकट भी हो चुका है। वो पासिंग आउट 10 तारीख को पहुँचेंगे, 10 मई को, ठीक है। तो फिर आप लोगों को सारे क्लासेस मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अभिषेक अजीत सर। Am I audible? Am I audible, everyone? So very good evening, everyone. कैसे हैं आप लोग? All good? Everything is going fine? Yes, very good. I think you guys didn't have your lunch, is it? Yes. When did you have your lunch? लंच नहीं लिया था? नहीं लिया था? So let me introduce myself. My name is Aditya Kumar Rai, and I'm currently working as a senior software engineer, and I did my BTech from IIT Computer Science Engineering branch. So basically I'd like to say thanks to Rohit for offering this opportunity to introduce and tell our stories to you guys. कि हमने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, है ना? So this is a time that everyone just passes through such hurdles, different sort of challenges while preparation. If anyone is doing any sort of course or any sort of job in the life, he must or she must have passed a journey of preparation. All right. So I am here standing before you. So a few years back, I was sitting just beside you, right? So it's just the time that I'm standing just the other side of the chair, right? So I would like to congratulate all of you first of all that you are sitting here. It means that you guys are at least sincere about your career, right? There are a lot of students, there are a lot of your friends who are not that much curious, that much interested in the studies, or maybe you say in the NEET or any kind of competitive exams. They might be wasting their time, or they might be enjoying with some sort of entertainment in their houses or wherever they like, right? So you are sitting here. This means that you guys are interested to build up your career and grow in your life. So first of all, a big round of applause for yourself. कभी अपने लिए भी ताली बजा दिया करो, ठीक है? दूसरों के लिए तो हमेशा बजाते हैं, right? So first of all, you guys are in 12th standard, right? And you are preparing along with your 12th exams, right? So this is one of the most challenging part, that to prepare for a competitive exam along with your board exams. So you face a lot of challenges, right? But there is a way. It's not that challenge that you can't cope up. There is a way. There is a path that if you follow, you will be able to crack NEET as well as you will be able to score good percentage in your 12th board, right? Your teachers are here who are going to help you out in each and every subject whatever you are studying. All right. So पहली चीज़ ये कि कुछ लोग इंडिविजुअल के लिए आए हर टाइम, कुछ लोग इंडिविजुअल के लिए हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसा भी है ना? तो ठीक है, इंडिविजुअल की एक स्टोरी है मेरी पर्सनल, आई शेयर विद यू। तो एक बार क्या हुआ कि मैं 12th में था, राइट? सो मैं भी इंडिविजुअल करता था। आई डिड माय प्रिपरेशन एंड आई वाज स्टडीइंग लाइक अ फिजिक्स फ्रॉम वन कोचिंग एंड केमिस्ट्री फ्रॉम वन कोचिंग एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अनदर कोचिंग। बट मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने क्या सोचा कि फिर फिजिक्स नहीं करते, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस। Sometimes there will be a time in your preparation when you will feel that this is the course and I am very much confident that I don't need any guidance. This is the biggest mistake I made. Don't do this.
ठीक है, देयर इज अ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग नीट एवरी ईयर, यू हैव टू कम्पीट विद देम। तो अभी उनके साथ आप कैसे कम्पीट करोगे? दे आर स्टडीइंग इन एलएन, दे आर स्टडीइंग इन कोटा, राइट, द मोस्ट prestigious institutes of India like LN or whatsoever. I am saying prestigious because they have a brand. This doesn't mean that they teach at like a par level. आपके टीचर्स भी हो सकता है उनसे बेहतर पढ़ाते हैं कुछ सब्जेक्ट में या ऑल सब्जेक्ट्स में, राइट। पढ़ाने कोर्स वही है, पढ़ाना वही है, ठीक है। बस ये है कि लोग क्यों भागते हैं, कोटा, एलएन हो गया, आकाश हो गया, या आपके अलग कोचिंग क्यों भागते हैं? ब्रांड की वजह से, है ना। पर जो अटेंशन आपको यहाँ पे ये सर दे देंगे, वो अटेंशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। आपके पर्सनल जो भी आपके डाउट्स हैं 1 by 1 आपको रिजॉल्व कराते होंगे सर, राइट। तो वो स्टडी मटेरियल वही है, कोर्स वही है, सिलेबस वही है, ठीक है। ऐसा जो भी स्टडी मटेरियल है ना, आप लोगों को डीपीपी दिया जाता होगा, राइट। देखो प्रिपरेशन में क्या है कि आपको ऐसा फील होगा ना कि मैं जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है किसी और पब्लिकेशन की केमिस्ट्री पढ़ रहा है, आपको लगा अरे यार ये बुक में पढ़ रहा हूँ, मेरा इससे सजेशन नहीं है, मेरा फ्रेंड किसी और पब्लिकेशन को पढ़ रहा है, उसमें ज़्यादा अच्छा मटीरियल उसको पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ोगे कुछ दिन, फिर लगेगा अरे यार ये मेरा फ्रेंड तो दूसरा वाला फ्रेंड तो और ज़्यादा अच्छा पब्लिकेशन पढ़ रहा है, इसको छोड़ते हैं वो वाला पढ़ते हैं। माय फ्रेंड ये गलती बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। जो पहली चीज़ आपको ये करना है कि आप रेगुलर क्लास आओ, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं रखना है। 1 साल है आपके पास अभी, राइट। इस पूरी कोशिश करनी है कि आपको इस साल में कन्वर्ट करना है, और 1 साल में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा एग्जाम नहीं है कि 1 साल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यू कैन डू इट, राइट। इम्पॉसिबल में भी होता है, आई एम पॉसिबल। दिस इज कहने की कोई नहीं है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। इफ यू थिंक दिस इज पॉसिबल देन इट्स पॉसिबल, इफ यू थिंक इट कांट बी पॉसिबल फॉर यू देन इट कांट बी पॉसिबल। तुम्हारे लिए वो एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है, बट तुम्हारे पड़ोसी के लिए तो नहीं मुश्किल है ना भाई, राइट। तुम्हारे लिए वो चीज़ मुश्किल हो सकती है, बट दूसरों के लिए वो चीज़ ईजी है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी प्रिपरेशन करी है। इट्स जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो आपको क्या करना है, इन समरी आपको क्या करना है, आपके पास 1 साल है, राइट। अभी ये सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे ड्रॉप लेना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, करेक्ट। आपके पास यू गाइस आर हैविंग लाइक अ 1 ईयर, आप अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ पूरे कोर्स का। आपको ये कोशिश करना है कि सर जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना, उससे आपका अपना पर्सनल स्टडी का जो सिलेबस है वो आगे रहना है। सर एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप वो अपने पर्सनल स्टडी में जो भी आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, वो चैप्टर आप ऑलरेडी कवर किए हो, तब वो ब्रेड प्लस बटर का काम करेगा। समझ लो मैम, यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। Whatever the chapter that Rohit sir or any faculty is teaching you at this moment in the classroom, you have to try to cover the chapter by yourself beforehand. All right? है ना? ऐसा अपने को सिलेबस बना के चलना है, ऐसा अपने को करिकुलम बना के चलना है। बस 1 साल की मेहनत है यार। Just try to focus for only 1 year. Everything will be getting changed. College life is टोटली डिफरेंट एंड अमेजिंग। मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ का, और मैं हमेशा बोलूँगा कि कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट एंड गोल्डन लाइफ ऑफ माई इंटायर लाइफ। जो कॉलेज के 4 साल 5 साल होते हैं ना, वो सोच भी नहीं सकते आप कितनी मस्ती करते हो, कितने मज़ेदार होते हैं, कितना मज़ा आता है लाइफ में यार, यू कांट इवन इमेजिन। और अगर अच्छा कॉलेज हो तो पूछने, 1 साल अपने डिस्ट्रैक्शंस दूर करो, 1 साल अपने डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मोबाइल हो या मूवी हो या दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, मस्ती करना हो, एक बनाओ कि मुझे सिर्फ संडे को ही अपना इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट करना है 1-2 घंटे का बस। बाकी दिन जितना क्लासरूम में पढ़ते हो वो पढ़ो, उसके बाद कम से कम 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी रोज करो। टीचर के पढ़ाने से, क्लासरूम में आने से नहीं होगा, तुम्हारे सेल्फ स्टडी से होगा। टू बी फैक्ट, एग्जाम क्रैक आपके सेल्फ स्टडी से होगा। ये जो पढ़ा रहे हैं इट विल बी लाइक अ विटामिन, इट वोंट बी लाइक अ कोल्ड फूड। आप रोटी खाओगे उसके साथ दूध पियोगे तो दिस इज लाइक अ मिल्क। रोटी आपका खुद का सेल्फ स्टडी है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है आपको 1 साल के लिए। आपको ये सोचना है कि मुझे इस साल के एंड में मुझे क्रैक करना है नीट एंड आउट। इसमें किसका किसका गोल है आउट ऑफ ऑल अंडर 100 क्रैक लाने का? How many of you guys want to score
less than 100 all India rank. No one? Seriously? Okay, there is one more. One guy. Big round of applause for it. भाई इसकी मजाक नहीं उड़ानी है. और कौन है? Seriously? Okay, big round of applause. यार निकलेगा नहीं निकलेगा दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, बट आपका टारगेट को एटलीस्ट होना चाहिए ना 100 लाने का. क्या हो गया यार तुम लोगों को? डर रहे हो क्या इस चीज से? बोलने से क्यों डर रहे हो यार? खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि यू कैन डू इट. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो पढ़ोगे तो निकालोगे यार, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो डोंट डाउट योरसेल्फ. गोल हमेशा यहाँ रखो, हमेशा बड़ा सोचो. भले ही आपका फ्रेंड, आपका फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपका मजाक उड़ाएं, चलेगा, दैट विल वर्क, बट गोल हमेशा ये रखो. ऑल इंडिया रैंक 100, अंडर 100, ये रैंक, ये अपना टारगेट रखो. मेहनत इसको देख के करो, तभी निकलेगा मेरे दोस्त, तभी निकलेगा. इसको देख के टारगेट. ठीक है, स्ट्रैटेजी सिंपल, मैं 5-10 मिनट और लूँगा. ठीक है, स्ट्रैटेजी में शेयर कर दूँगा मैं क्या फॉलो करता था, आपको मैं क्या बोलूँगा करने के लिए. सिंपल है. तो पहली चीज़ आपको डेली क्लास आनी है. ठीक है, क्लास डेली आनी है. दूसरी चीज़ कि एटलीस्ट ट्राई करो कि क्लास के साथ तुम्हारी सेल्फ स्टडी का करिकुलम चले. ऑलराइट, आपका अगर आप टीचर से पहले नहीं चल पा रहे हो चलेगा, बट आप टीचर के साथ साथ चलो. जो टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में, ये आपको हैबिट बनानी है कि वो चीज़ आप जाके आपको घर पे जरूर पढ़नी है. उस दिन जरूर पढ़नी, एक बार जरूर खोलनी होगा. डीपीपी उस दिन नहीं लगाओगे चलेगा, बट वो चीज़ जाके एक बार जरूर पढ़नी. राइट, पढ़ेंगे सब लोग? इसमें तो आप नहीं पढ़ना बात की, अभी तो आप ठीक है. नहीं यार, पढ़ना है, सीरियस होना पड़ेगा. देखो यार, कोई देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव, देयर इज नो एनी. आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो डेली क्लासरूम आओ. ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो तुम्हारे सेल्फ स्टडी का जो कोर्स है वो सर के साथ साथ चलता है. ठीक है, सर जो चीज़ पढ़ाए वो घर पे जाके पढ़ो. उसके डीपीपी प्रॉब्लम्स उस वीक में एटलीस्ट खत्म कर दो. अगर हो सकता है कभी किसी का एंगेजमेंट हो तो उस वीक पे खत्म कर दो. ठीक है, ये चीज़ तो होगी. ठीक, और एटलीस्ट 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी रोज करें. ठीक है, क्योंकि आप जिनके साथ कंप्लीट कर रहे हो माय फ्रेंड्स, वो 12-12 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 5 घंटे तो करने पड़ेंगे. एट दिस मच यू हैव टू डेडिकेट. करेक्ट. ठीक, इसके अलावा आपको क्या करना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. आओ पढ़ो, जितना पढ़ा रहे हैं टीचर वो पढ़ के जाओ. प्रॉब्लम्स डीपीपी रोज लगाओ, और स्टडी मटेरियल के बारे में कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. जो यहाँ से मिल रहा है पहले उसको सॉल्व करो, और एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करो. 1 मंथ में टारगेट करो कि 1 मंथ में तुमने जितनी भी डीपीपी लगाई है ना, मंथ एंड होते हो उसकी रिवीजन दोबारा हो जानी चाहिए. उतने से ही तुम्हारा नीट निकल जाएगा, उतने से ही निकल जाएगा. और बहुत जगह भागने की जरूरत नहीं. पहले उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम और कर सकते हो, फिर अपने अदर स्टडी मटेरियल सर से पूछो, सजेस्ट तो करेंगे, वो उठा के फिर पढ़ाएंगे. ठीक है, और एग्जाम, और ये बात ध्यान देना कि टेस्ट सीरीज आपको एक भी मिस नहीं करनी. ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज आपको कोचिंग से दिया जाएगा वो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी है. और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा इंडिविजुअल के लिए. हाँ यार, मैंने गलती करी थी गाइस, आप लोग मत करना. ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, इसलिए आई टू बी ड्रॉप. और आपको ड्रॉप नहीं लेना. 1 साल आपने क्यों बर्बाद करना भाई? 1 साल वो बचा के रखोगे तो 1 साल में लाखों रुपए छाप लोगे आफ्टर बीइंग इन बिजनेस. तो लाखों का नुकसान क्यों झेलना? झेलना है ना. तो 1 साल बचाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 1 साल. ठीक है, तो ड्रॉप बिल्कुल, ड्रॉप का टारगेट बिल्कुल नहीं करना है, इस साल ही निकालना है. और बाकी वर्स्ट केस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, सर है ना. ठीक है, 1 साल और पढ़ लेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ है. एक अमिताभ बच्चन को सब कोई जानता होगा, सब जानते हैं. उनके फादर थे हरवंश राय बच्चन, उनको भी जानते हैं कुछ लोग जिनको पोएट्री में इंटरेस्ट है. उनका एक शॉर्ट ऑफ पोएट्री है कि जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो. नींद चैन मतलब कि कम सोना है ना, 6-7 घंटे से बहुत. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान
मत छोड़ भागो। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, छोड़ देंगे? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगली बार फिर से प्रिपरेशन करेंगे और C1 क्लास में रैंक सबसे टॉप करके जाएंगे, राइट? तो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi very much. Am I audible? Yeah, so my name is Abhishek and many of you might be knowing me because I am there on your prospectus. Have you seen it? Yes. I am on the top left. So that gives me the feeling of like I am the owner of this coaching. But that is not true. I am not getting any penny from this coaching, but yeah, I am there. Okay. So I have seen many from last 2 or 3 years I have been actively involved in this coaching. If you talk about the decision making process, like if we want to include a teacher like Soham sir, so I was the one who not hired him, like I was the one who interviewed him and convinced him to come to this coaching. So like you guys are happy with him teaching you, right? Yes. And some other teachers also, and some who left you. So, and like I was also last year I was also involved in the counseling of the previous students who cracked the exams like NEET and JEE and JEE Advanced. So after cracking an exam, you will be reaching out to Rohit sir for regarding the counseling and admissions. Okay. So which college should I take and what should be my choice really? What should be the priorities according to which I should fill the colleges? So Rohit sir might be redirecting you towards me. Just reach out to Abhishek and ask him to help you. I will be charging you guys and taking some money from you, and then I will be helping you out. Okay? Yeah, nothing is free. Okay. But I will be really happy if you guys are getting good ranks. I will be really happy if you guys are getting enrolled into top colleges of India. Okay? Whether it is NIT colleges, IIT colleges or MBBS colleges, I would be really happy. Not me only, Rohit sir, Soham sir, everyone who is involved in this coaching, who are like working hard for you guys to like just let you get the good ranks in the exams which are upcoming. Okay? So you guys have got good ample amount of time. You guys are 1 year away from the exams which you are going to face. 1 साल बचा हुआ है. That is pretty much enough time to prepare for any exams, whether it is any exams. Like you can name any exam, whether it is IIT, NIT, any exams, UPSC, JEE Mains, NEET also. You can prepare for any exams effectively for 1 year and you can get good ranks. So if there is any student who is thinking that I can't crack the exam because I am not studied well for the last 1 year, he is wrong. He can crack that exam, the coming exam, which is 1 year after the current date, and you can crack the exam and you can get into good college. So Aditya sir told you about the process of studying for the upcoming 1 year, like how you should go about how you should make yourself prepare for the exams. I would be mostly talking about what is there after the exams, like what if you get into a college. Okay. So like there are many good things about getting into college. The first thing is that here you might be sitting and you will be thinking that I am the topper of this coaching, I am the topper of this district, I am the topper of this school. But if you get into any college, वहाँ आप देखोगे कि there are many students just like you. वहाँ पे if you get into any MBBS college of India, like any national level college, आप देखोगे कि आपसे बढ़ के बहुत लोग हैं. ठीक है? So what you guys will be having positive from that thing is that कि वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा from good students. वो बहुत तेज होंगे, आप उनसे जब मिलोगे, आप उनके साथ जब रहोगे, आप उनके साथ जब रूम शेयर करोगे, जब उनके साथ पढ़ोगे, जब एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तब आपका दिमाग बहुत अलग लेवल पे खुलेगा and
आपको लगेगा कि हाँ यही परफेक्ट प्लेस है जहाँ मुझे होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। द सेकंड बेनिफिट इज दैट यू गाइस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBBS यू गाइस विल बी गेटिंग good in hand salary also. Like if you join any medical college or if you start your own practice, पैसा तो बहुत आएगा आपको, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। आप क्या करने जा रहे हो आफ्टर 12th यू आर गोइंग टू डू दी अंडर ग्रेजुएशन, ओके। तो इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम्स है जैसे कि UPSC होता है वो भी आप अंडर ग्रेड के बाद ही देते हो, ठीक है। तो कॉलेज में आप अगर जाते हो किसी अच्छे कॉलेज में तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे खुल जाते हैं वहाँ से 12th के बाद में, अंडर ग्रेड के बाद। जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, IIT बॉम्बे से भी पढ़ाई किया, उसके बाद से वो वीडियोस बनाने लग गया, उसके बाद से वो आपका उसमें चला गया, क्या कहते हैं TDF ज्वाइन कर लिया, मीना एक आता है कैरेक्टर, आपने पता नहीं जाना होगा कि। तो ये भी एक कोई भी फील्ड आप चूज कर सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज। आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप UPSC की तरफ भी मूव कर सकते हो, आप चाहो तो अपना कोचिंग भी खोल सकते हो, जस्ट लाइक रोहित सर। इनका कॉम्पिटिटर बन सकते हो, नॉट इन पासीघाट, इन जिला पता है समवेयर है, ओके। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल जाएंगी जो आप कर सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग एनी गुड कॉलेज, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलता है तो आप हो सकता है कि पूरे लाइफ के लिए रिग्रेट करो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अभी मेहनत करना है, ठीक है। सर ने बताया कि कैसे आपको तैयारी करना है। आप अगर अभी मेहनत करते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। बट आप सोचते हो कि मैं अभी मजे कर लेता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, ये जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में अगर मैं अभी कर लेता हूँ तो फिर फ्यूचर आपका उतना ब्राइट नहीं रहने वाला है। आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं कुछ उन स्टूडेंट्स की भी बात करना चाहूँगा जो सोचते हैं कि यार ये तो टॉपर है, इसका तो हो जाएगा, मेरा तो नहीं होगा, ठीक है, मेरे तो इसके जितना मार्क्स आते नहीं हैं। तो आप रोहित सर से पूछ सकते हो। हमारा एक फ्रेंड था लकी सिंह राठौर, ठीक है, उसने 6 साल तैयारी की, 6 ईयर्स, और 6th ईयर में जाके उसका सिलेक्शन हुआ, और 6th ईयर में जाके उसका सिलेक्शन हुआ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 6 साल तैयारी करने की ज़रूरत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ऐसा बंदा था जो क्लास में बैक बेंचर था बट पढ़ने में खराब था। आप लोग हो सकता है अच्छे हो पढ़ने में, बैक बेंचर होने के बाद भी वो बैक बेंचर था, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। उसने अपने पेरेंट्स की ज़बरदस्ती के चलते कोचिंग ज्वाइन किया, लेकिन 6 साल उसने तैयारी किया, आखिर में जाके उसको सफलता मिली ही नहीं। मतलब वैसे बच्चे भी डिजर्व करते हैं MBBS में जाना जो मेहनत कर रहे हैं, भले ही उनका दिमाग उतना तेज ना हो। तो आप लोग अगर 1-2 साल तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, अगर मन लगा के तैयारी करो तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम। वो टफेस्ट एग्जाम नहीं है, टफेस्ट एग्जाम उससे भी ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। मेरा सर ने बहुत सारे टिप्स बताए आपको कैसे तैयारी करना है। मेरा बस एक सिंपल सा ही टिप्स रहेगा जो मैंने फॉलो किया था। मैंने कैट एग्जाम क्रैक किया था, CAT, उसके बाद से IIM ज्वाइन करते हैं। IIM के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा। हाँ, अंडर ग्रेड के बाद आप IIM भी कर सकते हो सकता है आप लोगों को ज़रूरत ना पड़े, बट बच्चे करते हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या होता है कि आपके पास 1 साल है, ठीक है। अभी से आप लोग कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट देने वाले हो, सर आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि हर एग्जाम के बाद से आप अपने जिस रूम में आप रहते हो वहाँ पे वॉल पे एक पेपर चिपका लेना, हर एग्जाम के बाद से अपना मार्क्स वहाँ पे लिखना, ठीक है। और आप देखोगे कि एंड में जाते जाते आपको एक प्रोग्रेस नज़र आएगा अगर आप एक्टिवली एग्जाम्स दे रहे हो, कोई भी एग्जाम स्किप नहीं कर रहे हो। और आपको क्या होगा कि आप वहाँ से देख पाओगे कि हाँ मेरा प्रोग्रेस किस सब्जेक्ट में हो रहा है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ से मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये देखा कि जब क्या होता है, सर भी मेरे को बता रहे थे कि अभी तो इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे जैसे एग्जाम आएगा बच्चों की संख्या कम होती जाएगी। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको पूरे टाइम तक यहाँ पे सिग्मा के साथ बने रहना है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने ही वाला है, ठीक है। सर ने एक शायरी बोला तो मेरे ऊपर भी एक थोड़ा सा दबाव आ गया शायरी बोलने का, तो मैं भी चाहूँगा कि एक शायरी आप लोगों के सामने बोलूँ, ठीक है। तो शायरी ऐसे है, दाद दीजिएगा। मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, ठीक है।
इतना ही भाई क्या करें। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करो, हम लोगों ने कुछ तो अचीव किया है अपने लाइफ में, तो आप लोग हमको हमेशा वो कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, सर नंबर शेयर कर देंगे। सर ने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया है यहाँ पे पढ़ाते हुए भी, तो सर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर उनसे कुछ बचे तो आप हमें कांटेक्ट करना, कहीं भी लगे कुछ भी हो, आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग स्टडी, एनीथिंग, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी हो आप लोग मेरे को मैसेज करना, सर को भी मैसेज करना, हम देख लेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। आउट ऑफ ऑल ऑफ यू हु थिंक्स दैट नीट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू क्रैक? नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, ऑनेस्ट आंसर देना है जिसको लगता है, क्योंकि जो नहीं हाथ उठाएगा फिर मैं उससे पूछूंगा भाई आपके लिए आसान है तो कैसे करोगे, मेरे को भी सिखाओ। अभी सब उठाने वाले हैं। किसको किसको लगता है? अच्छा, एक बार और हाथ उठा दो यार, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। ओके, हाँ, आपसे शुरुआत करते हैं, प्लीज स्टैंड अप। I'm just trying to make this discussion very interactive, all right? कि मैं कुछ पूछूं, आप कुछ बताओ, फिर आप कुछ पूछो, मैं कुछ बताऊं, all right? तो what's your name? कविता पांडे, right? पांडे नहीं, अगर मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, ठीक है? So आपको क्यों लगता है नहीं डिफिकल्ट है? नहीं, बताओ, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। आपको क्यों लगता है ये डिफिकल्ट है क्रैक करना, मतलब एडमिशन लेना डिफिकल्ट है? सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसलिए? और अच्छा, वो एक पॉइंट हो गया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और आपको प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाती इसलिए? फिर भाई डर क्यों है? उसी डर का तो इलाज करना है ना यार। अगर डर निकल गया, अगर आपके अंदर से, गाइस जस्ट 5 more 5 to 10 minutes, not more than that, आप उसके बाद फ्री हो, अपने जाओ में चाय वाय पियो, है नहीं? अच्छा, क्लास है, सॉरी। सो अगर डर निकल गया अंदर से कि नीट इज इजी टू क्रैक, जस्ट लाइक ये डर निकल गया, जो भी आईआईटी क्रैक करता है उसके अंदर से डर निकल जाता है कि आईआईटी इज डिफिकल्ट टू क्रैक, ठीक है? तो आपके अंदर से ये डर हमें निकालना है कि नीट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस पर्टिकुलरली, इट्स नॉट डिफिकल्ट, है ना? 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, राइट? आपको सिर्फ उसमें 450 स्कोर करना है, राइट? 450, राइट? एटलीस्ट जितना सर ने मेरे को बताया, 450 के बाद इनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, तो सब हाँ, मतलब मान लो मैं बोलता हूँ 500, चलो 500, ठीक है? 500 आपको स्कोर करना है यार। इंडिया के और भी जगह में लोग बैठे हुए हैं जिनको 600 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस के लिए। सो यू गाइस आर प्रिविलेज्ड, यू गाइस आर प्रिविलेज्ड, राइट? आपको सिर्फ 500 स्कोर करना है, जो कि बहुत इजी है यार, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप समझो इस बात को, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है पता है? ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इधर कैसे जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा, मैं ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ ना, नहीं जाएगा, मतलब आप अभी सुनोगे, उधर जाओगे ना, बोले क्या बोल रहा है। ये मोटिवेशनल स्पीचेस ना बस ये 15-20 मिनट 1 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। आपको वही डेली लाइफ चलती है भाई, चलो हाँ चलो हो गया क्लास, चलते हैं फिर आज मूवी देखते हैं, न्यू वाली लगी है। तो ये डर कैसे जाएगा? आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप डेली कम से कम 4 घंटे पढ़ोगे, आप प्रॉमिस करो। अगर आपने 1 महीने पढ़ाई कर ली ना, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप बोलो कि यार मैं नीट निकाल लूंगा। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो बात छोड़ दो, वो बात दूर की बात है। इफ यू आर कॉन्टिन्यूअसली स्टडीइंग लाइक अ average of 4 hours daily, you will be enough confident to claim that you will be able to crack NEET. मेरी बात मानो, बस 1 महीने आज से जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना ही घर जाके उसके डीपीपी लगाओ, डेली 4 घंटे पढ़ो। 1 महीने बाद वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से अपने आप आएगा, कहीं और से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है? और एक चीज और मैं लास्ट में बोलूंगा, आज घर जाओ सब लोग, यार देखो सीरियस होना पड़ेगा यार। नीट क्यों करना है ये आपको बेटर पता होगा। नीट क्यों करना है? क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, राइट?
डॉक्टर बनना है ना, तभी तो करना है। क्यों, कुछ और भी बोल रहे? डॉक्टर बनना है, राइट? डॉक्टर बनने से क्या होगा? हमारे सोसाइटी में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो आपकी रिस्पेक्ट इस लेवल की है। आपका रिस्पेक्ट ना कोई IAS ऑफिसर मैच कर सकता है, ना कोई इंजीनियर, ना कोई भी पब्लिक सर्वेंट है। आपकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। आप भगवान के बाद लोग आपको ही मानेंगे। वो रिस्पेक्ट है, एक ह्यूमैनिटी है कि आप किसी की जिंदगी बचाओगे यार। इससे बड़ा लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। हेलो, इससे बड़ा कोई हेल्प हो सकता है? बताओ, कोई नहीं हेल्प नहीं हो सकता अगर आप किसी की लाइफ बचा रहे हो। तो एक फैक्टर वो है। दूसरे फैक्टर ये कि आपके पास सारे प्रिविलेज होंगे। पैसा इतना होगा कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? बस 500 स्कोर लेकर, है ना? 4 से 5 घंटे कर लो मेहनत, बस इतनी तो हो जाएगी ना यार, इतनी तो हो जाएगी ना। मैं 8 घंटे नहीं बोल रहा, मैं वो फॉल्स होप नहीं दे रहा, ये कोटा वाली कोचिंग जैसे नहीं आपको 8 घंटे पढ़ना है यहाँ इसके क्लास के बाद, नहीं, आपको बस 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। इतना सब कोई पढ़ सकता है? पढ़ सकता है? हाँ पढ़ना है भाई, केवल और तेज बोलो, पढ़ सकते हैं सब लोग? परफेक्ट। तो आपको 4 से 5 घंटे जाके पढ़ाई करनी है और आज जाके एक पेपर पे एक प्लान बनाना है। क्या प्लान रहेगा वो? इस मंथ में मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर कवर करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। ठीक है? हर मंथ को आपको ये प्लान बनाना है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ को आपको प्लान बनाना है ये, इस मंथ एंड पे मेरा क्या क्या खत्म होने वाला है। और हर वीक ट्रैक करो, हर वीक एंड तक का प्लान बनाओ कि इस वीक में मेरा ये चैप्टर खत्म होगा। ट्रैक करो कि तुम पीछे हो या आगे हो, अपने आप को चैलेंज करो। ठीक है? और अगर प्लान गड़बड़ा जाए, मान लो खराब हो गया, राइट, तो मेरी एक अच्छी आदत है, बोलो या बुरी आदत है, मेरे पास जितना टाइम होता है ना उतने में मैं एक परफेक्ट प्लान बना देता हूँ। तो अगर मान लो तुमने 6 महीने कुछ गड़बड़ हो गया, किसी के यहाँ कुछ नहीं करता, ठीक है, पहली चीज़ ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा लॉस है। अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट मीन्स दैट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग लीविंग बिहाइंड यू। आपसे रैंक में वो ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। ठीक है? इट्स ए कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एक प्लान बनाओ, ठीक है, और उस प्लान को ट्रैक करो। बस इतना कर लो, 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लो और एक प्लान बना लो मंथ एंड तक का कि इस मंथ में ये चैप्टर खत्म करो, उसको ट्रैक कर दो। और 6 महीने बाद जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज हर मंथ में एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट सीरीज, इतना ही करना है। बस 3 चीज़ें करनी है, 4 से 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और प्लान बनाना हर मंथ में कि सर के साथ एटलीस्ट तुम्हारा सेल्फ स्टडी का सिलेबस चले। तीसरी चीज़ टेस्ट सीरीज दबा के लेनी है आपको 6 सीरीज। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसे समझ हैविंग लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम की हिंदी में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो आप लोग को बस 3 चीज़ें करनी है। 3 चीज़ें हो जाएंगी पक्का? अगली बार हम मिलेंगे फिर आपके नाम हमें होर्डिंग्स में दिखनी चाहिए, ठीक है, सबके लाइन से। सर के पैसे, मतलब सर को जगह ना मिले यार हमारे फोटो लगाने के, ठीक है? You guys are having promise with me? Perfect. वादा नहीं तोड़ना है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज, अगर किसी को कुछ डाउट है, जैसे पढ़ने में, याद करने में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, पूछ सकते हो। हाँ, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ डाउट है, यू कैन ओपनली आस्क, कोई इशू नहीं है। पर्सनल लाइफ से भी प्रॉब्लम है, मतलब दिक्कत है उसमें, तो हम उधर गेट के बाहर जाएगा, आप लोग उसमें भी कोई इशू नहीं है। कुछ डाउट है किसी को? याका मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वाला पागल हो जाएगा मुझे लगता है। थोड़ा खड़े हो गए, सब लोग सुने। याका मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, वाला पागल हो जाएगा मुझे लगता है। मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता? हाँ, अच्छा, नहीं होते, ना मुश्किल से होता है। तो मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं, तुम नीट का प्रिपरेशन करो, इसमें मैथ नहीं है। नहीं नीट नहीं दे रहे मुझे। अच्छा, तुम्हें जेई लेना है? हाँ। अच्छा, तो जेई लेना है तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो सबसे पूछो। कुछ
गलत बोला क्या मैंने? नहीं इधर से पूछेगा ना, फिर दूसरा क्वेश्चन वहां में फंस जाता है, फिर उसका हाँ, नेक्स्ट ऐसा इसका एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं तरीका फॉलो करता था। देखो मैं वही चीज बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी है, ठीक है, हवा वाली चीजें नहीं बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी चैप्टर में ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इधर इट इज अ बायोलॉजी और इट इज अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जिसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशन इंप्लीमेंटेशन लगते हैं, राइट? क्योंकि केमिस्ट्री हमने नहीं पढ़ी है भाई और फिजिक्स हमने नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं अच्छा टिप्स दे सकता हूँ। तो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, फिजिक्स भी या आप लोग के लिए फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम देता होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, किसी भी चैप्टर में सबसे पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। क्या एग्जाम्पल्स? कोई दिक्कत नहीं है, देख के सॉल्व करना, देख के सॉल्व करो, ठीक है? सारे एग्जाम्पल्स मतलब ट्राई करो कि एक 10 एग्जाम्पल सॉल्व किया फिर 11वां तुम बिना देखे करो, बट अगर सारे एग्जाम्पल्स भी देख के कर रहे हो ना चलेगा। पहले क्वेश्चन देखो, ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम्पल देखो, देखो कि वो क्या कर रहा है, ट्राई टू फाइंड अ सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न। इस वर्ल्ड में हर चीज पैटर्न पे चल रही है, हर चीज, एवरी सिंगल थिंग इज जस्ट ग्रोइंग एंड रनिंग अप ऑन अ पैटर्न। आपको बस वो पैटर्न फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स लगाओ, ठीक है? एग्जांपल्स लगाते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उस एग्जांपल लगाने के बाद 70% तुम्हारे जो एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? कूल। और कोई डाउट है किसी को? हाँ प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन। इसमें मैं भी थोड़ा बहुत कुछ बोलूंगा और अभिषेक सर को भी बोलूंगा कि वो भी थोड़ा कुछ बोले, ठीक है? देखो कुछ लोग बोलते हैं यार कि टॉपर्स दे डोंट हैव अ बैकअप प्लान, ऐसा सुना होगा कहीं, है ना? भाई देखो बैकअप प्लान सबके पास होता है, ठीक है? बट आपको क्या करना है कि बैकअप प्लान कुछ होता ही नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। बैकअप प्लान क्या है भाई? नहीं हुआ फिर से तैयारी करो, उसमें क्या बैकअप प्लान है, राइट? इट्स नॉट लाइक यूपीएससी, इट्स नॉट लाइक यूपीएससी कि देखो यूपीएससी में भी लोग क्या करते हैं ना, बैकअप प्लान की प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्यों कहते हैं कि टॉपर्स दे डोंट हैव अ बैकअप प्लान? बिकॉज बैकअप प्लान की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब एक बैकअप प्लान बना लेते हो ना तो आपको लगता है कि अरे यार नहीं होगा तो क्या होगा, चाय की टपरी डाल देंगे, है ना? अरे सब तो मैंने घटिया सा ठीक है, मतलब अगर नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस संभाल लेंगे। अब वो जो है ना, वही सारा गेम चेंज हो जाता है। आपको बैकअप प्लान आपका क्या है? आप एक दिन बैठो, वर्स्ट कंडीशन में सोचो कि बुरा से बुरा मेरे से क्या हो सकता है, बैठो सोचो बुरा से बुरा क्या होगा। नीट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा? घर वाले गाली देंगे, थोड़े बहुत टीचर्स भी गाली देंगे, फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाएंगे, और क्या होगा? रिलेटिव्स भी गाली देंगे, और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा, और क्या होगा? तुम्हारा एक साल वेस्ट होगा, और कुछ होगा इससे ज्यादा? लाइफ तो नहीं जाएगी ना भाई, जान है तो जहान है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर नहीं क्रैक हुआ इस बार तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फिर से दोबारा देने की, मैं फिर से ट्राई करूंगा, और इस बार डबल मेहनत के साथ ट्राई करूंगा, और ये ट्राई करूंगा कि जो मैंने गलतियां एक साल में की हैं, इंसान को हमेशा सही इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, चाहे किसी भी बात, किसी भी चीज से रिलेटेड आप बात कर लो, ठीक है? आप अगर जो गलतियां की हो प्रिपरेशन टाइम में, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको बैठ के फिगर आउट करना है कि मेरा नीट क्यों नहीं निकला। खुद से पूछो, इस सवाल का जवाब आपसे बेटर कोई नहीं दे सकता, ना आपके पेरेंट्स ना कोई नहीं, ठीक है? तो बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान कुछ नहीं है, आपको बस लगे रहना है, यही है बैकअप प्लान। एक गोल बनाओ, डॉक्टर बनना है, और उसके पे लगे रहो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, सिंपल, ठीक है? कूल। बोलना चाहते हो? यार मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है ना, तुम्हारे पास 1 साल है, तुम नीट की तैयारी कर सकते हो। मैंने जो स्टोरी सुनाया था ना लकी का, जो मेरा फ्रेंड है, तो वो कोई स्टोरी नहीं था, वो रियल लाइफ स्टोरी है, वो ऐसा फिक्शनल स्टोरी नहीं था। उसने 6 बार एग्जाम दिया और 6th में क्रैक किया, ठीक है?
तुम लोगों ने एक अच्छा वो चुना है कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो जिसमें कोई लिमिट नहीं है, अपॉर्चुनिटी लिमिट नहीं है कि आपको 2 बार ही एग्जाम देना है, 3 बार ही एग्जाम देना है। आप जितना बार चाहो उतना बार दे सकते हो। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, भले ही आप 2 बार 3 बार एग्जाम दो और आप हार जाते हो, बोलते हो कि चलो अब मैं नीट नहीं करूँगा, एक चीज़ तो ज़रूर होगा, आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होगा ना, क्योंकि अगर आप अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आप जो नॉर्मल स्टूडेंट 12th करते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। आप ये देखना, आप जाना अपने स्कूल में, आप कंपेयर करना बाकी बच्चों से, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो नॉलेज वेस्ट थोड़ी होगा, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। हो सकता है किसी दिन सिग्मा क्लासेस जैसा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगो, ठीक है। तो बैकअप प्लान का मतलब अभी मत सोचो, आप अभी उसको पढ़ाओ, अभी पढ़ो अच्छे से। फ्यूचर में जब अगर 1-2 आप अटेम्प्ट देते हो, अगर आपको लगता है कि सर अभी नहीं हुआ, मैं छोड़ रहा हूँ नहीं, तब मेरे से कांटेक्ट करना, तब देखा जाएगा क्या बैकअप हो सकता है, ठीक है। बट अभी आप अच्छे से तैयारी करो, बस ये समझ के करना तैयारी कि आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप कर दोगे उस नॉलेज से, ठीक है। एनीथिंग एल्स? उधर से यार राइट वाले क्या कर रहे हैं? लेफ्ट वालों नहीं मेरे, हाँ मतलब इधर से राइट। लेफ्ट वाले सॉर्टेड है, इनका नीट निकल रहा है, राइट? इनको कोई डाउट ही नहीं है, इनका नीट निकल रहा है। कुछ तो पूछ लो प्रिंस, कुछ तो पूछ लो। मेरा पहले का पढ़ा हुआ सब भूल जाता है। तुम बॉर्न मीटर नहीं हो। यार पहले का भूल जाता है, क्यों भूल जाता है? क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करते हो, सिंपल सा सोल्यूशन है। किसी का नहीं होता भाई, किसी का दिमाग नहीं कमजोर होता है, किसी का बहुत फास्ट नहीं होता है। जो बार बार उस चीज को करता रहता है उसका याद रहता है। अगर आप उसी चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आप नहीं भूलोगे। ये सिंपल सी चीज है। तुम्हें पर्सनली जानता हूँ कितनी घंटे पढ़ाई करते हो, तो मैं तो बता सकता हूँ कि तुम भूलोगे ही भूलोगे। तो यही है कि आप पढ़ते रहो ना, आप रिवाइज करते रहो, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं आप नहीं भूलोगे। एनीथिंग एल्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था राइट साइड से। और कुछ आगे से डाउट है किसी को? अच्छा, एक चीज़ है कि जैसा सर ने बोला, पढ़ाई ऐसी चीज़ है यार कि ये कभी वेस्ट ही नहीं हो सकती, लिटरली। तो सबसे बड़ा बैकअप क्या है? जो आज आप पढ़ रहे हो ना, यही सबसे बड़ा आपका बैकअप है। कि आप इस चीज़ को ना, आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप किसी को होम ट्यूशन पढ़ा के भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। सिंपल सा बात है। तो बैकअप के लिए सोचो ही मत। आप, एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कि दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर। आप पैसा लगाओ, कुछ भी लगाओ, डूब सकता है। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ कभी नहीं डूबता, कभी लॉस होगा ही नहीं आपका एजुकेशन में, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। मस्ती करो, सब करो, बट हाँ अभी के लिए आपके पास टाइम कम है ना। आप जितनी मस्ती करनी थी अब कर लिए हो, 1 साल है, 1 साल बस डेडिकेटली पढ़ाई कर लो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में तो वही 5 साल है, 3 साल बस मस्ती होती है वहाँ पे। सीरियसली 3 साल कुछ पढ़ाई नहीं होती, वो मस्ती करते करते आप पढ़ लोगे, सेमेस्टर पास होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो बोल रहा था ना भूलने वाली प्रॉब्लम है। मैं और अभिषेक क्लासमेट रहे, ठीक है। तो जैसे कल एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, तो पूरे टाइम पढ़ाई होती ही नहीं थी, मतलब हम नहीं पढ़ते थे, ठीक है। कल एग्जाम है आज मैं नहीं पढ़ता था भाई लिटरली मैं नहीं पढ़ता था, ठीक है। मैं जैसे कल एग्जाम है 10 बजे से, तो मतलब आज शाम में हो गया, शाम तक कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। 5 चैप्टर्स, 5 यूनिट से मान लो, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो 9 बजे रात से पढ़ाई चालू हो गई, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे किस बंदे को कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छे से आता है क्लास में, ठीक है। उसके बाद जाएंगे भाई बोलेंगे भाई ये चैप्टर ये पढ़ा दे, ये चैप्टर तू पढ़ा दे, और 2 चैप्टर खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, और 2 चैप्टर बाकियों से पढ़ लेंगे। तो जो हमें आता है उसको पढ़ा देंगे, और जो उसको आता है हम पढ़ लेंगे। अब ये बताओ, सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ाई करके 10 चैप्टर याद होता था, ठीक है। अब वो चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर मेरे साथ क्या हुई कि मैं 9 बजे तक पूरी रात जगते थे, पूरी रात एग्जाम के रात पहले। बट ऐसे नहीं करना है, बट आप लोग करोगे कॉलेज में जाने के बाद, सब करें, ठीक है, क्योंकि मस्ती बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ मेरे साथ कि मैं 9 बजे तक पढ़ता ही रह गया, ठीक है, 9 बजे तक पढ़ता ही रह गया, और मैं उसके बाद मैं पढ़ के और फिर चला गया एग्जाम देने। वहाँ जाके बैठ रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ,
समझ ही लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। वो सारे यूनिट्स में पढ़ के गया हूँ, भले ही एक बार देखा है वो ठीक है, बट सारे यूनिट्स पढ़ के गया हूँ, लेकिन मैं लिटरली कुछ नहीं लिख पाया। फिर मुझे समझ में आया कि सबसे मैं कहाँ मिस किया। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? एनी गेसेस? थोड़ा तेज। एग्जैक्ट। उसके बाद मैंने फिर क्या रूल बनाया कि भाई 9 बजे से निकलना है ना, 8:45 तक पढ़ाई करनी है और 15 मिनट में जितना कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। फिर मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, जो कि खराब रिकॉर्ड है, कि मैं हर एग्जाम में उसके बाद 15 मिनट लेट गया। क्या होता था कि एग्जाम कॉपी बढ़ चुकी है और मैं गेट के बाहर विंडो के बगल में खड़े होके मैं रिवाइज कर रहा हूँ। टीचर देख रहे हो, भाई आ जा भाई, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। बट इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए, लगभग ठीक ठाक आ गया, सब में पास हो गया। तो क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इतना बड़ा सिलेबस याद कर पाओ। तो अपना जो भी प्लान बनाओ, ऐसे बनाओ कि तुम एक चैप्टर एटलीस्ट, जो भी एक मंथ में ना, एक दिन, वीक में एटलीस्ट एक दिन अपना रिवीजन डे रखो, चाहे सैटरडे को या संडे को। उस दिन कुछ पढ़ाई नया मत पढ़ो, बस जो चीज़ पढ़ा है ना 5-6 दिनों में, उसको बस एक नजर डाल दो। बस बहुत सिंपल है क्रैक करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कुछ भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ अभिषेक सर है, तो आप कभी भी फिल कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, वी आर ऑलवेज हियर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। और नीट फोड़ना है अगले साल, ठीक है। थोड़ा है डॉक्टर बन जाना तो ये वाली स्ट्रेटजी मत फॉलो करना, नहीं तो सुई गलत लगा दोगे, ठीक है। वो इंजीनियर बन के तुम कर सकते हो, बुरे इंजीनियर बनोगे फिर भी चल जाएगा, बुरे डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बनना है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और हाँ, थ्योरी थोड़ी कम हो चलेगा, प्रैक्टिकल अच्छा करना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय।